Let me begin by introducing the speaker of this video. Great people do ordinary things in an extraordinary way. Dr. Stanley Pinto Bharatiya does everything with lots of passion and in an extraordinary way. He is an educationalist, confidence specialist, planner, visionary, futurist, thought instigator, multilinguist, coach, storyteller and a freelance corporate trainer cum business consultant, specializing in the field of establishing and management of high quality educational institutions. He has established a network of institutions known as SKC School and Junior College, which simply allow children to grow up to be leaders. Under the able leadership of Dr. Stanley Pinto Bharatiya sir, SKC Vasai is awarded as the best state board school and junior college in Maharashtra, enlisted in the top 500 schools and colleges of India, and is ranked among the top 29 science colleges. Dr. Stanley Pinto sir has invested 28 years in education and training. His contribution to teacher training, establishing, conducting affordable schools and delivering sustainable education is recognized by many parts in this globe. He has PhD in Educational Management and is recipient of India's Best Teacher Educator Award, Outstanding Young Personality Award, Indira Gandhi Sadbhavna Award and International Gold Star Millennium Award. Dr. Stanley Pinto Bharatiya is an educational leader who has transformed many lives and has been conferred with the title Leader Who Transformed Lives. Let's hear and watch one more wonderful story with a very powerful moral, absolutely relevant in today's lockdown period. From this renowned personality and a great storyteller, I would rather say story shower, Dr. Stanley Pinto Bharatiya sir. Now, I request you to subscribe this channel and press the bell notification. And 2, I earnestly request you to watch the video till the end. You will benefit. SKC Pranam to all my dear parents, SKCians, friends, associates. Today I am going to tell a story. आज मैं एक कहानी बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया कहानी. And I am going to tell the story in English. English means Hindi English का combination, so that all of you understand. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा. एक बहुत बढ़िया कहानी और उससे भी बढ़िया उसका मॉरल है, पावरफुल मॉरल, सबक बहुत अच्छा है. कहानी में 2 कैरेक्टर है. मेरे कहानी में आज का 2 कैरेक्टर है. एक कैरेक्टर का नाम है जय और एक का नाम है वीरू. शोले देखा होगा आपने, वहीं से कैरेक्टर का नाम लिया है. ये 2 कैरेक्टर दोनों हमारे वसई विरार एरिया में रहते हैं. दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की, दोनों ने एक ही जगह से ग्रेजुएशन किया. और जब मौका आया, पेपर में ऐड आया नौकरी के लिए, तो दोनों का नजर उस ऐड पर पड़ा और दोनों ने अप्लाई किया. और वो नौकरी था एक अमेरिकन शू कंपनी में. जूता बनाने की कंपनी था अमेरिका का, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का. और उस में उन दोनों ने अप्लाई किया. एप्लीकेशन दोनों पर दोनों सेलेक्ट हो गए. सेलेक्ट होने पर दोनों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और दोनों जय और वीरू को पूरे 1 महीने का सेल्स ट्रेनिंग दिया गया. दोनों बहुत खुश थे कि उनको अभी अमेरिकन कंपनी में नौकरी मिला, क्योंकि उनको पगार अभी डॉलर में मिलने वाला है. छोटा सा यहां पर एक जोक शेयर करना चाहूंगा. जो इंसान को इस ऑर्डर में 4 चीज मिलेगा तो बोलते हैं स्वर्ग अर्थ में ही है. दैट इज अमेरिकन सैलरी डॉलर में, चाइनीज फूड खाने के लिए, ब्रिटिश हाउस रहने के लिए और इंडियन वाइफ. ये 4 चीज इस ऑर्डर में मिलेगा तो बोलते हैं स्वर्ग यहीं पर है. और इसका उल्टा हो जाए तो नर्क भी यहीं पर है. यानी कि अमेरिकन वाइफ, ब्रिटिश फूड, ना मिर्ची ना नमक, चाइनीज हाउस और इंडियन सैलरी. जय और वीरू लकी थे कि दोनों को अभी डॉलर में पगार मिलने वाला था. 1 महीने का ट्रेनिंग होने के बाद उस कंपनी का टाइम अब मौका था कि दोनों को अलग अलग जगह भेजना था फॉर मार्केटिंग. कंपनी का प्रोडक्ट जूता था, तो
ये स्टोरी जो है ये बहुत साल पहले की बात है, यानी कि 1920s की बात है। तो सबसे पहला उन्होंने जय को भेजा एक अफ्रीकन आइलैंड में। एक अफ्रीका का आइलैंड है, आइलैंड यानी कि जैसा श्रीलंका है, सब तरफ पानी, वहां उसको भेजा कि वहां जाके आप जूता बेचो। बड़ा जहाज यानी कि अ बिग शिप फुल ऑफ shoes was stacked in the ship, and Jay was told to go to that African island and create a market, sell shoes there. अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर अफ्रीकन आइलैंड तक जो डिस्टेंस था वो 6 दिन का था बाय शिप। 6 दिन ट्रैवल करके उसको आना था। तो वो पूरे जूते भरकर शिप लोड ऑफ शूज वो अफ्रीकन आइलैंड में पहुंचा। जब पहुंचा अफ्रीकन आइलैंड बहुत उस वक्त 1920 प्रिमिटिव था। उतरते ही जब उतरा वो आइलैंड में उसकी नजर पड़ी जो डॉक में, जो शिप जहां आता है डॉक, वहां के लोगों के पैरों पर। He saw that most of them were not using footwear. उसने देखा कि बहुत लोग जूते नहीं पहने हुए हैं। ये देखते ही उसको शॉक लग गया। जय ने बोला, हे मेरे भगवान, कहां भेज दिया मुझे। जितना एक्साइटमेंट उसको नौकरी मिलने में था, जितना एक्साइटमेंट ट्रेनिंग होने के था, ये नजरिया देखते ही उसका पूरा हौसला निकल गया। His enthusiasm went down, his hat sank कि किधर आ गया। इमीडिएटली उसने ऑर्डर दिया, 1 मिनट इस शिप को खाली मत करना, मैं आइलैंड में घूम के आता हूं। पूरा आइलैंड घूमने के लिए गया जय, और हर बार हर जो भी इंसान आइलैंड में चल रहा है उसके पैर की तरफ दिखता था, और 100 में से 90 लोगों के पैर में जूता ही नहीं था। 1920s की बात थी, अफ्रीकन आइलैंड था, लोग तब इंडिया में भी जूते नहीं पहनते थे बहुत सारे जन। तो जब इसने देखा कि ऐसे आइलैंड में लोग जूते क्या है पहनते नहीं है, तो जूते बिकेंगे कैसे। जब वो 2-3 घंटा घूमा तो शाम को उसने, उस वक्त SMS मोबाइल तो था नहीं, टेलेक्स था, टेलेक्स। उसने केबल एक मैसेज भेजा अपनी कंपनी को। एक ही जगह था, एक पोस्ट ऑफिस था जहां से केबल मैसेज भेज सकता था। उसने टाइप करके 3 लाइन, हमारे यहाँ टेलीग्राम होता था वैसा मैसेज भेजा कंपनी को, 3 लाइन का मैसेज। सबसे पहला लाइन में लिखा था, नोबडी वेयर शूज हियर, यहां कोई जूता नहीं पहनता। दूसरा लाइन में उसने लिखा था, मार्केट बड़ा तकलीफ वाला मार्केट है, प्रॉब्लमेटिक मार्केट है। और तीसरे लाइन में उसने लिखा कि वो वापस आ रहा है, इज कमिंग बैक। और एक ही होटल था उस आइलैंड में, उस होटल में रूम बुक करके सो गया, बिना खाना खाए सोया। इस हार्ट वाज सो लो, इतना डिप्रेस था कि वो खाना भी नहीं खाना चाहता था। उस होटल में सोकर सवेरे, नेक्स्ट डे सवेरे शिप लेकर वापस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चले गए। अगर उसको आने के लिए अगर 6 दिन लगेगा तो वापस जाने के लिए भी 6 दिन लगेगा। 6 दिन बाद जब वहां पहुंचा तो अमेरिकन बॉसेस खुश नहीं थे, क्योंकि इतना ट्रेनिंग के बाद ये वापस आ गया। तो उन्होंने, बिकॉज टेलेक्स पहला आ गया था, जय उतरते ही टाइम वेस्ट नहीं किया, अमेरिकन कंपनी है, टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्हें तुरंत उसे कलीग वीरू जो ट्रेन था उसको भेजा, बोला तू जा। वीरू कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है, वीरू को भेजा गया। और वीरू उसी शिप में भेजे, अमेरिकन कंपनी हार नहीं मानती है, तो उसी शिप में वीरू बैठा एंड ही वेंट सेलिंग डाउन टू द अफ्रीकन आइलैंड। अफ्रीकन आइलैंड को सेल करके गया। उसको भी फिर 6 दिन लगा। अब 6 दिन जय को वापस आने में लगा और 6 दिन वीरू को जाने में लगा। 12 दिन में कुछ तो एनवायरनमेंट बदली नहीं होगा, वहां का नजरिया बदली नहीं होगा, वहां का जो दिखता है बदली नहीं होगा। जब वीरू वहां पर पहुंचा उसने भी वही देखा कि 100 में से 90 लोगों के पैर में जूता नहीं है। देखते ही उसके अंदर से आवाज आया, वाओ वाओ, जूता नहीं, इतने लोगों का जूता नहीं है। उसने भी इंस्टेंट, जय ने क्या बोला, शिप खाली मत करो, इसने बोला फटाफट खाली करो, मैं घूम के आता हूं। और वो 3 घंटा आइलैंड में घूमने गया और सबके पैर में देख रहा था कि उसको भी वही दिखा कि 100 में से 90 लोग के पैर में जूता नहीं। 90 people out of 100 aren't wearing shoes. Every time he saw a person without shoes, his heart went up pounding with joy. खुशियों के मारे उसका दिल ऊपर उठने लगा। और वो भी उस टेलेक्स के, एक ही टेलेक्स था, टेलेक्स पोस्ट ऑफिस में एक टेलेक्स भेजा अपने कंपनी को, और उसने भी 3 लाइन का मैसेज भेजा। वीरू ने ये मैसेज भेजा, पहला लाइन, नोबडी वेयर शूज हियर, यहां कोई भी शूज नहीं पहनता। सेम मैसेज, फर्स्ट लाइन सेम। सेकेंड लाइन बोला उसने, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है,
और तीसरा लाइन उसने ये लिखा कि और 6 जहाज भर के जूते भेजो इधर, मैं सब बेच डालूंगा। अभी हम दोनों कैरेक्टर को देखते हैं, क्या जे ने क्या किया और वीरू ने क्या किया। दोनों को इक्वल अमाउंट का एजुकेशन मिला था। इन दोनों वसई विरार में एक ही स्कूल में पढ़ाई किया, दोनों ने एक ही जगह ग्रेजुएशन किया और दोनों को 1 महीने का ट्रेनिंग सेम दिया गया। दोनों को सेम आइलैंड में भेजा गया, खाली 12 दिन का फर्क था। अभी सेम एजुकेशन लेकर विद द सेम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दोनों को एक ही आइलैंड में भेजा। आइए देखते हैं फर्क क्या है जे और वीरू में। जे जब उतरा, उसने जब देखा कि 100 में 90 लोग जूते नहीं पहन रहे हैं, उसने ऑर्डर यह दिया कि मत खाली करो। वीरू ने बोला जल्दी खाली करो। एक डिफरेंस। दूसरा, जब जे ने देखा कि 100 में 90 लोग जूते नहीं पहन रहे हैं, हिज हार्ट सैंक, उसका हृदय एकदम दुखी हो गया। Whereas, जब वीरू ने देखा कि 100 में 90 लोग नहीं दे रहे हैं, his heart leapt with joy, खुशियों के मारे वो झूम उठा। जे ने जब देखा 100 में से 90 लोग जूते नहीं पहन रहे हैं, उसने उसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम दिखा। और वीरू ने जब देखा 100 में 90 लोग नहीं पहन रहे हैं, उसको वहां पर अपॉर्चुनिटी, मौका दिखा। एक को प्रॉब्लम दिख रहा है, एक को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, एक को मुसीबत दिख रहा है, एक को मौका दिख रहा है। वही चीज देख रहे हैं दोनों। इट्स लाइक एक ग्लास में अगर हम आधा पानी, एक बॉटल, कोई बोल सकता है आधा खाली है, कोई बोलता है आधा भरा है। देखने की नजरिए की बात है। जे को सिर्फ प्रॉब्लम नजर आया, इसीलिए वो दुखी होकर खाना नहीं खाया। वीरू खुश हो गया। खुश होकर उसने भी जब टेलेक्स लिखा तो जे ने कहा, फर्स्ट लाइन दोनों का सेम है, नोबडी वेयर शूज हियर, यहां कोई जूते नहीं पहनता। लेकिन सेकेंड लाइन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जे लिखता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वीरू लिखता है बहुत बड़ा मौका है, बिग अपॉर्चुनिटी। जे लिखता है मैं कुछ समय वापस आने वाला हूं, वीरू लिखता है और 6 जहाज भेजो वहां से, मैं सारे जूते बेच डालूंगा। आई विल बी एबल टू सेल 6 लोड्स ऑफ शिप फुल ऑफ शूज। यह बहुत बड़ा मौका है। आपको क्या नजर आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका देखने का नजरिया। उसको हम डिफाइन करेंगे अगर इंग्लिश में, एटीट्यूड इज नथिंग बट द क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस विद विच यू रिएक्ट टू द वर्ल्ड। आई रिपीट, यहां देखिए मैं वर्डिंग में डाल रहा हूं। एटीट्यूड इज नथिंग बट द क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस विद विच यू रिएक्ट टू द वर्ल्ड। एटीट्यूड मतलब आपका देखने का नजरिया किस क्वालिटी का है। वो डिपेंड करता है कि आपको उसमें प्रॉब्लम नजर आता है या अपॉर्चुनिटी नजर आता है। आप में उसमें आपको वहां पर मौका, फायदा नजर आता है या नुकसान नजर आता है। चीज वही है, आपका देखने का नजरिया। एंड याद रखिए, एटीट्यूड ही आपको ऊपर ले जाता है या गिराता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, इट इज नॉट एप्टीट्यूड दैट डिटरमिन्स altitude. I repeat, it is not aptitude that determines altitude. It is attitude that determines altitude. Aptitude मतलब आप कितने शिक्षक हैं। Attitude मतलब आपका देखने का ढंग, और altitude मतलब कितने ऊपर आप जाते हैं। कितने शिक्षक हैं ये डिटरमिन नहीं करता आप कितने ऊपर जाएंगे। आपका देखने का नजरिया ये तय करता है कि आप कितने लाइफ में ऊपर जाएंगे। अभी मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं और आज के टाइम के लिए कैसा रेलेवेंट है। आज लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में बंद हैं। अगर आप मुझे पूछोगे, आई विल से पिछला 45 डेज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन पिछले 45 डेज। जब मैं लोगों को फोन करता हूं, पिछले दिनों में मैंने रोज बिना फेल मैंने 10 से 15 फोन कॉल किया है। 5 मेरे फैमिली और एसोसिएट्स को, 5 पेरेंट्स को और 5 मेरे बाकी मित्रों को। तो जब मैं फोन करता हूं, कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेस्ड क्या हो गया, पूरा बिजनेस बंद है।
सबको उसमें प्रॉब्लम नजर आता है और कुछ लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आता है, अपॉर्चुनिटी, फायदा। मुझे 45 डेज में सिर्फ अपॉर्चुनिटी नजर आया। आई री इन्वेंटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया, मैंने सब कुछ, मुझे फायदा नजर आया। जो जो चीज मैंने लाइफ में नहीं कर पाया वो सब चीज करने का मौका भगवान ने दिया है मुझे इस 45 डेज में। मैंने वो सब चीज जो मैं नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने किया। So much so, we got together to invent new learning systems, new teaching system. इतना ही कि हमने सोचा किस तरह से लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा हम एसकेसी का वर्जन 2.0 लेके आएंगे। हमने रीइन्वेंट, एसकेसी को ही रीइन्वेंट किया। कितना बड़ा मौका। तो क्वेश्चन ये है, तो विनर या लूजर आप क्या हो? अगर आप विनर हो तो आपको हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी नजर आएगा। कितना ही बड़ा प्रॉब्लम दो, विनर को हमेशा उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आएगा। अगर आप लूजर हो तो कितना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी दो, उसको सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर आएगा। ये आपका देखने का नजरिया तय करता है कि आप विनर हो या लूजर हो, क्या आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे लाइफ में। विनर बोलता है लेट मी सी व्हाट्स इन इट फॉर मी, चलो मैं देखता हूं मेरे लिए इसमें क्या है। विनर बोलता है लेट मी हैव अ बाइट, कभी भी डिश दो तो ना नहीं बोलता है, एक बाइट खा के देखता हूं कैसा है, अच्छा लगा तो ज्यादा खाऊंगा। विनर बोलता है लेट मी गिव इट अ ट्राई। लूजर को हमेशा प्रीजुडिस से बंधा रहता है, वो पहला जो उसका प्रीजुडिस है उससे बंधा रहता है और वो बोलते हैं व्हाई शुड आई ट्राई। वो हमेशा रास्ता ढूंढता है अवॉइड करने के लिए चीजें, जब भी सामने आएगा वो कुछ भी मौका और रास्ता वो अवॉइड करेगा। जैसे मैंने बोला लास्ट 45 डेज वर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे मौका मिला बहुत। ऐसा भी मैं आई एम वेरी वेरी फैमिली फर्स्ट मैन, मेरा एटीट्यूड है फैमिली फर्स्ट। मैंने ऐसा ही लाइफ को बनाया कि जहां मेरी स्पाउस, मेरी अर्धांगिनी, मेरी मिसेस मेरे साथ में काम करें, सिर्फ 2 कैबिन बाजू में, हम साथ में मिलकर प्रोजेक्ट चलाते हैं। मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़े, एक हाथ फ्लोर ऊपर, हम दिन साथ में रहे। और लेकिन ये 40 फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कम टाइम दे रहा था। अब मुझे बहुत सारा टाइम मिला मेरे फैमिली के साथ स्पेंड करने में, बहुत सारा टाइम मिला इतने सारे वीडियो बना के। शायद इस 45 डेज में जितना कम्युनिकेट मैंने आप पेरेंट्स से किया है इतना मैंने पहले 10 साल में कभी भी नहीं किया है, सिवाय साल में जब ओपन डे आता है या एनुअल डे आता है या टीवी सीएमडी सेशन आता है तब हम आपसे बात करते हैं। लेकिन ये 45 डेज में हमने जितना वीडियो बना के आपसे कम्युनिकेट किया है वो मौका का फायदा पिछला कभी भी नहीं मिला। अभी हमने रीइन्वेंट किया, क्यों नहीं हम जब लॉकडाउन खुलेगा we'll make it a part of our life। क्यों नहीं हम संडे मॉर्निंग क्लास, हर संडे एक वीडियो लेके आएंगे जहां पेरेंट्स को स्कूल में क्या चल रहा है ये सब हम यूट्यूब के द्वारा आपको दिखाएंगे। जो मंडे मंच हमारा स्टोरी क्लास होता है, हमने ये अभी नया एसकेसी 2.0 में सोचा क्यों नहीं हम ये जो स्टोरी है मंडे यहां बोलने के बजाय हम सैटरडे शाम को रिलीज करेंगे, ताकि संडे बच्चे को स्टोरी देखना ही होगा, मंडे यहां पर स्टोरी नहीं बोला जाएगा, हम स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे, स्टोरी पे इनसाइट्स ढूंढेंगे, स्टोरी के बारे में ग्रुप डिस्कशन होगा। लेकिन स्टोरी हम सैटरडे रिलीज करेंगे ताकि परिवार मिलके स्टोरी संडे को देख पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे चीजें हमने डिसीजन लिया है ताकि एसकेसी 2.0 जब आएगा वो ब्यूटीफुल बन के आएगा। ये सब हमने वीरू बन के सोचा है और जो हमारे अंदर जय होता है उसको हमने लॉक में डाला है। हर एक इंसान के अंदर एक जय होता है, एक वीरू होता है, हमें उस जय को खत्म करना है। जय आपको रोकता है। जब भी हमारे टीचर्स फोन करते हैं, पिछले 20 दिनों में हमारे टीचर्स टीम ने हर पेरेंट को 2 से 3 बार फोन किया है। हर पेरेंट को क्लॉक का और हम देखेंगे तो लगभग 12 मिनट से लेकर 30 मिनट तक बातें हुई है हर स्टूडेंट्स के, हर फैमिली से टुगेदर। हमारे टीचर्स का 30 मिनट का टॉक 1500 घरों से हुआ है। कैन यू इमेजिन कितना। और हर एक जब बात हम करते हैं उसका रिकॉर्डिंग हम आपको भेजते हैं, उसका रिकॉर्डिंग हमारा सेकंड एक लाइन सुनता है, हम बेस्ट जो है वहां से हमने लिया, हमने आपसे रिव्यू भी लिया है। द क्वेश्चन है कि ये लॉकडाउन के टाइम पर आपके अंदर एक जय है या वीरू है। डू यू सी द लॉकडाउन एज अ प्रॉब्लम और डू यू सी लॉकडाउन एज एन अपॉर्चुनिटी। जब हम एक ऐप भेजते हैं पेरेंट्स को, बच्चे को हमने ऐप भेजा है,
कि ये ऐप में रोज आप काम करो। कुछ पेरेंट्स हैं बहुत खुश है, थैंक यू सो मच आपने हमको माइंड स्पार्क दिया, थैंक यू सो मच आपने मैथ्स टूल दिया, थैंक यू सो मच आपने इंग्लिश स्टोरी प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू सो मच अवंती का क्लास हो रहा है कि मेरा बेटा रोज 2 घंटा आज क्लास में इन्वॉल्व हो रहा है, लेक्चर अटेंड कर रहा है, थैंक यू सो मच कि मेरे बेटा जो पबजी में है या इसमें आज वहां से हटकर कंपलसरी टीचर का फोन आता है तो एटलीस्ट 3 घंटा ऐप को फायदा कर रहा है। और कुछ पेरेंट्स हैं जिनके अंदर जे है, वाई शुड आई ट्राई, कुछ रीजन देते हैं शॉर्ट स्टोरी टेलर्स, क्यों मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा बेटा या बेटी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा नेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्पीड नहीं है, जहां मैं रहता हूं वहां मोबाइल नहीं लग रहा है, या नहीं हम और कुछ कर रहे हैं, ये चीज नहीं कर रहे। यहां तक कि कुछ पेरेंट्स कॉल्स भी अवॉइड कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अंदर एक जय है। आपको अंदर से वीरू बाहर लाना है और इसी लॉकडाउन का खूबसूरत फायदा उठाना है। Again I repeat, let me come down. What is attitude? Attitude is nothing but the quality and direction of your thought process with which you react to the world. I repeat, attitude is nothing but the quality and direction of your thought process with which you react to the world. जब हमारा फोन आपको आता है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपका एटीट्यूड है। अगर आपका रिएक्शन जय जैसा है, कुछ फायदा बच्चे को नहीं होगा लॉन्ग रन में। अगर आपका एटीट्यूड, अगर आपका रिएक्शन वीरू जैसा है, तो बच्चा भी फायदा उठाएगा और लॉन्ग रन में आप फायदे में रहेंगे। हर ऐप, हर मौका, हमारे सामने 100 ऐप था, हमने बहुत चुन कर आपको 5 या 6 ऐप भेजा है। केजी के लिए हमने पी स्कूल बोल के भेजा है, जो 3rd तक के बच्चे को हमने बोला इसमें एम्बार्क करो। Amazon स्टोरीज हमने केजी से 10 तक के लिए दिया कि उसी एक ऐप के अंदर हर लेवल के बच्चे के लिए स्टोरी है। फिर हमने लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स, टॉप स्कोरर और माइंड स्पार्क मैथ के लिए दिया। वैसे ही रेगुलर क्लास में हमने अवंती 10th के बच्चों को 11th का चालू किया और 11th के बच्चों को 12th का लेक्चर चालू किया। लेकिन जो यूसेज है, जो हम में से वीरू है, जो पेरेंट्स वीरू है, जो बच्चे वीरू हैं, उनको इस सब चीज में फायदा नजर आया और वो 2 से 3 घंटा लाइक हमारा वीडियो भी, जो पेरेंट्स के अंदर वीरू है वो हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, और जिसके अंदर जय है वो इधर देखते ही नहीं है या 2 या 4 मिनट में वीडियो देखना छोड़ देते हैं। अब मैं इन्वाइट करता हूं, हम आप सबको आइए लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएंगे, आइए जय को खत्म करते हैं, आइए वीरू को जन्म देते हैं, आइए वीरू को आगे बढ़ाते हैं। कम लेट अस सी एन अपॉर्चुनिटी, इस लॉकडाउन का अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एन अपॉर्चुनिटी टू रीड। अभी मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की वीडियो बनाया है, अलग इसी यूट्यूब चैनल में है, वो द प्लेग बुक के ऊपर है। मैं आपको इन्वाइट करता हूं, आप वो भी वीडियो देखिएगा, और वो भी रिलीज हुआ है इससे पहले। और ये जो वीडियो खास हमारे पेरेंट्स के लिए है, जो जिसको लॉकडाउन में प्रॉब्लम नजर आता है, राइट। सो वो जो वीरू था, जय था, उसमें तीसरा और एक कैरेक्टर है जो बोलूंगा। तीसरा कैरेक्टर का नाम था ज्वाला। वो एसकेसियन था, उसकी पढ़ाई वैसे में एसकेसी में हुई थी और उसका कॉलेजिंग भी एसकेसी में हुआ था, और वो जय और वीरू से हटके था। उसने भी एड का जवाब दिया, उसका भी ट्रेनिंग हुआ था, और उसको भी सिमिलर आइलैंड में भेजा गया, अफ्रीकन दूसरे आइलैंड में भेजा गया ज्वाला को। ज्वाला कैसा रिएक्ट करता है मैं आपको बताऊं, बिकॉज एसकेसियन था। वो जब गया उस आइलैंड में, उसने जब देखा वही सेम सीन, 100 में 90 लोग नहीं जूते पहने, उसका हाथ नीचे नहीं गया, उसका हाथ ऊपर गया। वो खुश हो गया, उसने उस अपने कंपनी से 6 शिप जूते मंगाए, लेकिन यहां तक वो वीरू जैसे था। फिर उसने एक्स्ट्रा क्या किया, ज्वाला वीरू से अलग कैसे था। ज्वाला पूरे आइलैंड में घूम कर देखा कि उस आइलैंड की खासियत क्या है। उसने देखा कि उस आइलैंड के लोग एक अलग प्रकार का अचार बनाते हैं। उसने देखा वो आइलैंड का लोग एक अलग टाइप के हैंडीक्राफ्ट के बास्केट बनाते हैं। उसने देखा उस आइलैंड में, क्योंकि सी से कवर्ड है, अलग मच्छी को सुखा के उसका एक अलग रेसिपी बनाते हैं। उसने देखा उस आइलैंड के लोग पपड़ बनाते हैं। इतना रेयर ये चारों चीजें
नंबर 1 अचार, नंबर 2 जो फिश ड्राई करके उसका रेसिपी, नंबर 3 जो बास्केट बनाते हैं, एंड नंबर 4 उसने देखा पापड़। ये चारों इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको लगा क्यों नहीं इस आइलैंड की चीज को मैं मेरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ले जाऊं। उसने इसका सैंपल अपनी कंपनी को भेजा, कंपनी को बोला इधर इस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, आप चाहो तो ये लोग और बना सकते हैं। वो कंपनी को अच्छा लगा, उस कंपनी ने डिसाइड कर लिया ये चारों चीज वो प्रोडक्ट में ऐड करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। अभी ज्वाला को जूते बेचने की जरूरत नहीं थी, उसने बार्टर किया, उसने इस आइलैंड के लोगों को जूते दिया और उसके अगेंस्ट में उसने अचार, हैंडीक्राफ्ट बास्केट, मच्छी का रेसिपी और पापड़ लेके वापस शिप खाली नहीं भेजा, ये उल्टा बेच, जब जूते भर के आती थी वो पापड़ अचार भर के वापस भेजता था। यानी उसी शिप का डबल फायदा उठाया और उस कंपनी का फायदा 4 गुना हुआ। नो डाउट आज उस अमेरिकन जूते कंपनी का सीईओ ज्वाला है। थैंक यू सो मच। फिर आता हूं और एक कहानी लेकर। एसके से प्रणाम।